not voted but still present here: Lashmita, Mriganka, and Ankit. So, okay, okay. So, Ankit, we are one short on one member. So let me announce the team. Uh, Before announcing, the motion for today is religion should be taught in school. Religion should be taught in school. So for the motion, we have Himashri, Astha, Biplab, and Elver. Is everyone clear? I can The support four here. team: Sorry, Himashri. I'm not for the motion. I'm the observer. No, actually, observer. I You can voted in the only. group. No, yes, I know you have voted in the group, but observer, the maximum number is five, and you are Okay, okay, around the seventh member to vote, okay, so okay, you have okay, to participate. okay. So let me just announce the four again: Himashi, Astha, Biplab, and Elvar. For the against team, we have Jyotirmoy, Ashish, Ankit, and Shubham. Am I clear? If there is any doubt, you can open your mic and ask about your team and or the motion. A concern, we have a quorum, and because you are the EC member, you can't join today, unfortunately. Before we proceed, let me just announce the winners from the last debate: Himashi and Jyotirmoy. A round of applause emoji for them. And the star debater, which is myself, Vivek. Uh, Kanchan, I think we have informed it quite clear in the group. So hard luck. A sacrifice since you are the EC. So let me just start. Religion should be taught in school. Sorry to interrupt, but I think Lashmita has left again. So if she do not join, then Kanchan may join in. Okay, okay. Lashmita is anyways not in the team, in Oh, the she is debate not. team. Okay, okay, sure. Yeah. Okay. So let me just invite the EC members to kindly initiate the debate. Bhargav. Thank you, moderator. So as the topic has been already been said by the moderator, so I would love to see some examples from you guys, like why you believe that religion should be taught or not, and it will be a interesting debate today. I know. So let's see, and I would love to see examples from outside of India also, because it is not limited to our country only. So yeah, best of luck to everyone. Thank you so much. Bishesh, Uh, please a guide very, the members. a very warm welcome to everyone. As today's topic is also a very controversial one, just like yesterday. So today, everyone, while expressing their own views, kindly refrain from giving any anti-Semitic or any Islamophobic or any hate speech towards any religion. And I guess everybody will do great. And best of luck to everyone. I invite Kanchan to give her statement. Kanchan, Kanchan, are Yes, you there? Can you hear me? yes. Yes. So I would like Please to kindly say, give your introduction. so I'm Kanchan, the EC member, and I would like to say all the best to everyone. That's all. Rajashri, Thank you, moderator. Good evening, everyone present over here. And today's topic is, as you know, religion should be taught in school. Yes, it's a very, very controversial topic, but I will really suggest you people that please try to put forward your own viewpoints rather than any stated facts. Yes, you take reference from there, but try to put down what you think about the topic, what you feel,
should there be a religious teaching in the school, or there should be no religion teaching in the school? Try to be yourself, try to bring up your own thought process. It will really you will really come up with big ocean of knowledges. Thank you and best of luck everyone. Thank you, AC members. Now I invite the observers to kindly and in very brief introduce Krishna Sharma. Krishna Sharma. She left, I guess. Hello everyone. Oh. No, I'm She's yes, Krishna. uh, Yes, please. hello everyone. I don't have much knowledge about debate and all, so I can only say all the best to everyone. Okay, I invite Malavika De to make any observation for today. Malavika De, if I pronounced that right. Same here. I don't have any much knowledge about this. I'm just an observer. So best of luck to everybody. Okay, Shreya. Are you there, Shreya? Yes, yes. Yes, please. Hello, everyone. Actually, I'm very much one-sided about this motion, so I would really like to see your views from the other side. So, best of luck. Is Kaushik here? No, he is not. Okay. I will first invite Himashri to give the introductory statement along with her arguments. Thank you, Himashri, moderator. you can start. Am I audible? Yes, yes, very clear. Okay. So, thank you, moderator. So, today's topic for the debate is religion should be taught in schools. And I'm here to speak for the motion that is, yes, it should be taught in schools. I'd like to start with saying that religion is a topic which has been in our lives, in human lives, since time immemorial. And I would like to start with 2 points. That is, religion improves the understanding and appreciation for ideas and practices which have been going on in different religious communities and different religions. And moreover, it secondly, I believe that it also uh, causes personal growth in people, understanding the beliefs and values of their own religion better. So, therefore, it is a very important subject to be added in school curriculum. Thank you. I invite Jyotirmoy to give his introductory statement and his arguments. Jyotirmoy. मैं आज इस विषय पर एगेंस्ट में हूँ, तो यही बोलना चाहता हूँ कि इंडिया हमारा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारा रिलीजियस एक साथ रहते हैं और पीसफुली रहने के लिए हम लोगों को एक न्यूट्रल स्थिति को मान के चलना पड़ेगा। इसलिए हमें कोई एक रिलीजियस के ऊपर फोकस ना देकर हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस देना चाहिए। हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you. I invite Astha to give her introductory statement and her argument. Thank you, moderator, for recognition. So I'm going to speak for the motion that religion should be taught in schools. With religion comes religious texts, and the texts only teach morals and ethical principles that gives the students the sense of right and wrong. It connects them with spiritualism that balances the lives of people to get along materialism. Religious teachings in schools enables children and young people to explore the world's major religious views, which are independent of religious beliefs, and to consider the challenges posed by these beliefs and values. Educating religion in schools help people understand and appreciate different religious ideas and practices, leading to more tolerance and respect for other cultures and religions, which will subsequently result in the balance of society. For now, I would like to end. Thank you.
Thank you, Asta. I invite Ashish for his introductory statement and his argument. Ashish? So, hello everyone. Thank my name is Ashish. My name is Sarkar, and today I am against the motion. And I would like to say this that religious in school, there are various religions in our country as long, and having one or particularly biased religion teachings would be a great chaos. So I'll see what can put forward to this. Thank you. Before I proceed any further, I would like to inform that religious teaching not necessarily in India. We are taking an umbrella term across the world. Okay, so I invite Biplab for his introductory statement and his argument. Biplab, Hello everyone. yes, Hello. Am I audible? yes. So today I will be speaking about in further motion. Religion should be taught in education institute. It will help our youth to understand our culture, our past, and about their religion and about other religions better. It will create a sense of tolerance, a sense of what is a sense of sorry, I just forgot. It will create It's understanding okay. among We'll the come. peoples. It will create understanding among the people. If we understand different religions and we study about different religions, we will understand their positives and beliefs, which will help us in respecting each other's practices. That will lead to a peace and harmonious living in the region. I invite Ankit to give his introductory statement and his first argument. Ankit, Hello. Hello yes, everyone. please. I'm speaking against the motion, and religion should not be taught in school as it will create controversies and disagreement with people. And as we all know, hate spread faster than love, and which will make unsuitable influence in the society, and it its establishment will be very much difficult. Thank you. Okay. I invite now Elvar to give his introductory statement and his first argument. Elvar, Okay, my name is Ronit. So I've oh, not okay, sorry. prepared anything because at the last moment I've joined. So I'm speaking against the motion, I think. No, no, you are again So, speaking for the motion. oh, sorry, for the motion. Yes. Okay. Give me a minute. I have to think first. I was Okay, we'll thinking. come back to you. Okay. Yes, yes, have a moment. Have a moment. I will come back to you. I invite Shubham to give his introductory statement and his first argument. Shubham, are you here? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, please. Yes, So please. I think the religion should not be taught in education institutions because that they they can cause disharmony in education environment. That's Okay. all. Okay. Elvar, are you Okay. ready with your point, Elvar? Yes. Okay. I think religion should be taught in schools. Not everything about religion, but main philosophies like how to think, maybe about the ethics and moralities. Hmm. Mm, Okay. 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 So let's begin with the second round of counter arguments. I first invite Himashri from the forward team. Please start. Okay, so I Himashri? believe that. Hello. Yes, start.
Okay. So I believe that religion also helps us to make moral decisions because in religions, most of the things that we understand helps us critically analyze the situations which have been going on and then make decisions. And it also talks about history because in history we can see how the society has developed, how our civilizations have developed, and in that way we can understand a lot about our history, our evolution as well from religious texts. Thank you. And sorry, I had one counterpoint as well. Someone Hmm. told that teaching about one religion should not be the should not be done in India as India has a diversity of religions. But the thing is, we are not talking about teaching one religion. We can include a lot of religions. We can include every religion which has been evolved in India, and we can then just compile them, their evolution, how, why it has been evolved, and uh, what are its practices, and what are its beliefs. We can compile those things and teach them in the primary levels. And as the time passes, we can include the higher studying materials for those religions in schools. Thank you. Okay, okay. I invite any counter arguments from the against him. Please raise your hand. Yes, Shubham, please counter. So the study of religion is a subject for uh, is an academic subject for very advanced level. The ethics, the ethical value, what is good, what is bad. These things are uh, best reserved for their parents to inculcate to their children. In school, everyone comes from various background, and if the school if they started to teach every religion, the curriculum will be very vast. First and second, our history. If you look at recent development, our history has been shrunk. The Mughal Empire history has been removed. It is Hmm. for this one reason that our course is very large. Okay, Hmm. so why should we include religion in top of this already overburden our students, rather than Hmm. teaching them how to file for tax and how to how to be adult kind of subjects. Why should Hmm. we focus on religion? Because ethical values are not only found in Okay, religion; they are found in various sources. okay. I invite Astha for any counter arguments. Astha. Yes, I'm there. Okay, so every human has a religious identity, and it's not wrong to make them aware of this identity. And as I already mentioned before, teachings of different religions only increase the tolerance for other religions as well. I would like to elaborate this statement. When in an institution, religious teaching doesn't mean teachings of only one religion. They are teaching all the different religions that exists. And when the students are well aware of all the different religions, a Hindu student is also learning the good things of the Muslim religion. A Muslim religion is also getting to know all the good things of the Jain religion. So I firmly believe that when all the diverse group of students are getting to know about all the positive notes of the different religions, it is only a good note that they are getting more, their tolerance and respect for other culture and religion is increasing. Also, with religion, as I have also mentioned about the texts, I would also mention about the two major epics, the two epics of the Hindu religion. The epics, when with religion comes epics. So when the teachings of the epics are introduced in a particular period or in a particular as a particular subject in schools, the different mighty stories of the mighty heroes mentioned in the epics only can only inspire, like Lord Krishna. The stories of Lord Krishna or Arjuna can only inspire the students and the different religious people
in the school, Okay. be it mighty Rama or anything from the epics or the text. So I believe that religion, teachings of religion in an institution can only bring positivity for the students, but not Okay. a controversy. Thank you. Okay. I invite Jyotirmoy for his counter argument. Jyotirmoy. मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश के बारे में मेनली मैं बोलूंगा। तो हमारा देश में एक क्लास में बहुत सारा रिलीजियस साइड से मतलब स्टूडेंट्स आके बैठते हैं एक साथ पढ़ते हैं। तो हम लोग वो रिलीजियस जब पढ़ाएंगे, वो वर्ड आएंगे तब पढ़ाएंगे कि हिंदू मुस्लिम बहुत बहुत वो नाम आ जाएंगे अल्टीमेटली। तो क्या होगा, बच्चों के बीच में एक कंपटीशन पैदा होगा कि हमारा ज्यादा अच्छा है तुम लोगों से, और तुम लोगों से हमारा ज्यादा पुराना है रिलीजन, हमसे पीछे आया है तुम लोगों का रिलीजन। ये सब में कंपटीशन भाव आएगा। तब क्या होगा कि एक हमारा तो देश में ऐसा होता ही है कि वो रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स होता ही रहता है, वो तो सबको पता है। तो ये सब होने से क्या उन लोगों को पॉलिटिकली वो यूज नहीं करेगा बच्चे लोगों को। वही Okay. तो एक इशू है उसमें। Okay. Okay. I invite Biplav for counter argument. Biplav. तो Please जैसा proceed with भी only counter. Okay. ओके, जैसा भी ज्योतिर्मय ने कहा, पॉलिटिकली गलत इस्तेमाल होगा। तो अगर बच्चों को बचपन से सब रिलीजन के बारे में कुछ पढ़ाया जाएगा तो उन्हें एक मेंटली वो उन्हें पता होगा कि ये रिलीजन में ये है। पॉलिटिकली तब मिसयूज नहीं होगा क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा। अभी पॉलिटिकली मिसयूज इसलिए हो रहा है क्योंकि यूथ के पास नॉलेज ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर आके कोई स्टेटमेंट दे दे रहा है कोई रिलीजन के अगेंस्ट में, और यूथ मान के चल रहा है क्योंकि उनके पास नॉलेज है नहीं, उनको खुद पता नहीं अंदर में क्या है। वो जो बोल रहे हैं हाँ ये तो सही होगा, ये बोल रहे हैं मतलब है सही है। अगर उनके पास नॉलेज होगा तो वो खुद से सोच समझ के डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से वो लोग वोट देंगे, इससे और बेटरमेंट होगा। और फिर किसी ने कहा था कि सिलेबस बढ़ जाएगा। यस, सिलेबस बढ़ जाएगा मतलब जब ये इंट्रोड्यूस होगा एकेडमिक्स में तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। बैठेंगे कमेटी, उसके बाद उसमें डिसाइड होगा कि करिकुलम थोड़ा मैनेज किया जाए, कहीं थोड़ा कम ज्यादा करके एक सिलेबस मैनेज किया जाए। ऐसे भी रिलीजियस ट्यूशन दिया ही जा रहा है, क्योंकि आप अगर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। मुस्लिम जाते हैं मस्जिद में, फिर शाम को आप मुस्लिम बच्चों को देखोगे मस्जिद में जाते हैं, जैन बच्चों को देखोगे कि वो भी जाते हैं अपने मंदिर में, क्रिश्चियंस को देखोगे वो डेली संडे चर्च जाते हैं, वो वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। अगर स्कूल में ये दिया जा सकता है एक अम्ब्रेला के नीचे, इससे और अच्छा होगा। ऊपर से अलग अलग जाति के बच्चे साथ में बैठेंगे और एक दूसरे के धर्म के बारे में जानेंगे, तो उनमें भी एक अच्छा सा बिलीफ होगा कि हाँ इसके धर्म में ये है। अभी तो जैसे कि आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकोगे कि एक क्लास में अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे हैं, तो एक टाइम ऐसा हो जाता है कि एक हिंदू वाले बच्चे अलग अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, मुस्लिम वाले अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, तो वहीं पे आप सिख देखोगे वो अलग ग्रुप बना के बैठे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक दूसरे का किसी को पता नहीं है, और जब ये पता चल जाएगा तब शायद ये ग्रुपिज्म कम हो। Okay, please. I invite Ashish for counter. Ashish. Ashish. I'm still counting. I'm still thinking on my point. Just give me some time. Okay, I'll come back to you. Ankit. No, I voted. Ankit, please make your counter points. तो मेरा कहना है कि मीन्स अगर एक इंस्टीट्यूशन जैसे आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जहाँ पे पहले से ही मतलब रिलीजियस बिलीफ्स आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपना जानो और आप ऐसे अपना ही कीजिए। मीन्स आप पहले अपना सही से जानो, फिर दूसरे में जाने का इंटरेस्ट हो। एंड अगर एक चीज़ है पहले से तो फिर दोबारा उसको दूसरा चीज़ में लाने की ज़रूरत क्या है। और अगर ये मेन स्ट्रीम में स्कूल में मतलब स्कूल में टीचिंग देना ही है, इसको अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला के नीचे सबको पढ़ाने का सोच है, तो आप मतलब किसको हायर करेगा, जो प्रोफेशनली एजुकेटेड है या फिर एक मंक, एक प्रीस्ट या मौलाना या इसको फादर को हायर कीजिएगा। क्योंकि मीन्स अगर ये डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सीज मतलब अगर आप सेम जगह पे पढ़ा रहा है और सेम रिलीजन का आदमी लोग बीच बीच में रह के पढ़ रहा है,
तो वो कंट्रोवर्सीज होगा ही। और आप मतलब मे भी आप अपना सुपीरियर मान के चलेगा और दूसरा का सुनेगा तो बोलेगा कि अरे मेरे में तो ये नहीं है, इसका में है, तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से। और वो चीज़ आप मीन्स मतलब टू एन सेंस वो एक ओवरकम करने में बहुत टाइम लग जाएगा और कंट्रोवर्सीज और मतलब जो भी हेट है वो ज़्यादा फैलेगा स्टूडेंट्स के बीच में। Okay. I invite Elvar for his counter argument. Elvar, Ronik, sorry. Is Ronik here? He left. I Actually, cannot. network issues. Okay. Okay. I invite Himashi for counters. Thank you. So Hmm. I would like to say that जो पहला रिमार्क किया गया कि बहुत वास्ट है रिलीजन, तो हम अगर प्राइमरी लेवल से सीनियर सेकेंडरी लेवल या उसके ऊपर कॉलेज लेवल तक पढ़ाए तो थोड़ा थोड़ा करके तो सब कुछ मिल के वो लोग पढ़ा ही सकते हैं रिलीजन के बारे में। और इट्स नॉट एंड जो बोला गया है कि सबको अपना ही रिलीजन पढ़ना चाहिए, क्यों अपना ही रिलीजन सिर्फ पढ़े? दुनिया में इतने सारी टीचिंग्स है, इतने सारे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है समझने के लिए कि कैसे दुनिया में इवोल्यूशन हुआ, तो हम लोग उस प्रोसेस को क्यों ना अपनाएं? हम लोग को ऑब्वियसली वी शुड ट्राई एंड accommodate that knowledge in our brains as well, because तभी हमें पता चलेगा कि इन लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों है और हम लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों है, या इन लोगों को ऐसे पढ़ा गया है इसलिए ये लोग ऐसे काम करते हैं और हम लोग को ये पढ़ा गया है इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। बट दैट डजंट मेक देम रॉन्ग और दैट डजंट मेक देम राइट। उन Okay. लोगों को ये सोचने का आई एम सॉरी यस Okay. Please conclude. ओके एंड अनदर वन हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला गया, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, हमें फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है, सेकंड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है, तो हम लोग ये नहीं सोचते तब कि हाँ मुस्लिम लोगों का तो ये है तो हमको उनके साथ फाइट करना चाहिए या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं हम लोग सोचते हैं अच्छा इन लोगों का ये प्रोसेस है इसलिए इन लोगों का इसलिए ट्रिपल तलाक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसलिए अभी एबॉलिश किया गया है। हम लोग वो सब समझते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हाँ इसलिए हम लोग कॉन्फ्लिक्ट करेंगे उनके साथ। थैंक यू। Okay. 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 ज्योतिर्मय. मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कोई आदमी खुद के धर्म को दूसरे से नीचे नहीं मानते हैं, वो एक बहुत बड़ा बात है, सेंसिटिव टॉपिक है वो। जो और एक बात है, मतलब कि दलाई लामा जो है तिब्बत का, तो दलाई लामा ने बोला था एक बात कि खुद का धर्म को बेस्ट मानना मतलब कि दूसरों का धर्म बुरा है, ये सेम होता है ये बात। ये मतलब रिलीजियस बेस्ड थिंकिंग क्यों ही लाए बच्चों के बीच में? वो एक मतलब कि वो डिवाइड करने वाला चीज बीच में क्यों ही लाए? उस चीज को ही उठा देना चाहिए ना, जो सोच आना ही नहीं चाहिए बच्चों के बीच में, वो चीज हम लोग उन लोगों के बीच में घुसा रहा है। और इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों लोगों को उन चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन लोग को। वेरी इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग, मतलब पॉलिटिकली वेरी इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसे कि हम एकदम करेक्ट चीज, मतलब कि जो एथिकल की बात बोल रहे हैं लोग, तो ऐसे एक अच्छा चीज ही समझाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। लोग रेडी है उन लोगों को मतलब कि डाइवर्ट करने के लिए रेडी है पॉलिटिकली। ठीक है। वो बहुत बड़ा इशू है। Okay, I will now move to round 3. I invite all the EC members and the observers to raise their hands for any question. All the others, please switch off your raise hand option, and only the EC member and observer raise your hands so that I can ask questions. Yes, Shreya, please, your question. यस मतलब वो मैं किसी को पॉइंट आउट करके पूछ सकती हूँ ना? Yes, yes. हाँ, तो ज्योतिर्मय ने बोला है कि रिलीजन बीच में लाना ही क्यों है, पर मैं उससे पूछना चाहूँगी कि रिलीजन जो है इसको हम लोग एस्केप तो नहीं कर सकते, ये सोसाइटी में होगा ही। तो अगर हम लोग उनको मतलब ये तो ऐसा कोई हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम एस्केप करें उसको, हम लोग को सोसाइटी में वो होगा ही। Your question, please.
Question please. हाँ, हम लोग की सोसाइटी में होगा ही। तो अगर हम्म। ऐसा, तो उसने ऐसा क्यों बोला कि हम लोग को ऐसा बीच में नहीं लाना चाहिए, जबकि हम लोग इसको एस्केप कर ही नहीं सकते। हम लोग को ये उल्टा ये बेटर प्रूफ किया जा सकता है कि अगर हम लोग उनको समझाए तो उनको पता होगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है अलग-अलग में। तो उसमें ज्योतिर्मय का क्या व्यू है, मैं जानना चाहूँगी। Yes, Jyotirmoy, your answer. Jyotirmoy, please मैं respond. बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो रिलीजियस के बारे में बोलने से अच्छा हम लोग ह्यूमैनिटीज के बारे में सिखाए। उसका जो रिलीजियस में जो है मॉरल एथिक्स, तो उन सबको समझाए एज ए स्टोरी बेस्ड। उनको हम मतलब रिलीजियस बेस्ड नहीं समझाए, हाँ, उसको हाँ। स्टोरी बेस्ड समझा। रिलीजियस के मतलब डिवाइड रेदर करने से देन कि नहीं उनको होता है। डिवाइड कर दे, हम लोग उसका सब मतलब एक साथ लेके यूनिफाई करके समराइज बोले। करके हाँ उसको जो मॉरल जो एथिक्स है उन लोगों का उसको समझाए तो Okay. तो अच्छा होगा कि वो ट्रिगर्ड नहीं होगा रिलीजियस बेस्ड है Okay. बच्चा लोग। Okay. ट्रिगर्ड Bhargav, your question. लोग हैं। Okay, Bhargav, your question. Thank you, moderator. I have a question for the against team. अगर रिलीजियस टीचिंग स्कूल्स में देता है, तो आप लोग को नहीं लगता जो आजकल वायलेंस हो रहा है रिलीजन के लिए, रिलीजियस वायलेंस, जो आप आजकल कुछ भी मतलब बात उठता है तो रिलीजन को उठा देते हैं लोग, तो आप लोग को नहीं लगता है कि अगर रिलीजन टीचिंग स्कूल में देते हैं तो ये चीज कम हो सकता है? Who would like to answer from the against team? Please raise your hand. Yes, Shubham. I don't think studying of religion in a curriculum will solve those problems, because that kind of problem is enshrined in our society very deeply. The religion and politics are very interconnected from the era of Muslim formation, or from the era of the Crusades, even in Hinduism, or Buddhism, and you can think of any religion. The religion and politics are interconnected, so they were developed together, and so you cannot you cannot institutionalize the problem, the solution for an age-old problem. Okay. I saw Kaushik's hands raised. Do you have any question? Please. Yes, I have a question. I have a question for the fall team, and specifically from Asta. Asta said that we have to teach मतलब पॉजिटिव साइड दिखाना चाहिए सब रिलीजियंस का, लेकिन ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं हो जाएगा कि सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाओ? मतलब हर रिलीजन में तो फॉल्ट होता ही है, हम लोग सबको पता है, तो वो अलग नहीं हो जाएगा थोड़ा? Yes, आपको मुझे Asta, जानना है इसे। please respond. ओके सो मुझे ये कहना है कि जब एक स्कूल में पहले ये मैं बताना चाहती हूँ कि स्कूल में हमेशा जो भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टीचिंग्स ऑफ द स्कूल। तो स्कूल में एक अगर रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया जाए तो हर एक रिलीजन का टीचिंग्स वहां पे दिखाया जाएगा। सो हर एक रिलीजन का इक्विवेलेंट, अगर हिंदू का ये एक अच्छा चीज दिखा रहा है, मुस्लिम का भी अच्छा चीज ही दिखाएगा। मैनिपुलेटिव नहीं होगा। मैनिपुलेटिव तब होगा जब सिर्फ एक रिलीजन को सपोर्ट किया जाएगा। मैनिपुलेटिव तब होगा जब सपोज द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज अ हिंदू, तब अगर वो हिंदुइज्म वहां पे इम्पोज करना चाहे तब वो मैनिपुलेटिव होगा। दे आर इक्विवेलेंटली सपोर्टिंग ऑल द रिलीजन्स, दे आर इक्विवेलेंटली स्टेटिंग द वैल्यूज ऑफ द अदर रिलीजन्स एज वेल। तो वहां पे मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। इसीलिए Okay. अभी आजकल आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड दैट बिकॉज ऑफ द इफ रिलीजियस टीचिंग्स आर प्रैक्टिस इन स्कूल्स, तब वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ज्यादा होगा। और इसीलिए सेलिब्रेशन के मामले में भी सेलिब्रेशन और भी ज्यादा ऑफ ऑल द रिलीजियस, लाइक क्रिसमस हो, या अभी ही क्रिसमस इतना अच्छे से ऑल द रिलीजन आर प्रैक्टिसिंग क्रिसमस एज वेल। अगर रिलीजन स्कूल में पॉजिटिवली इम्पोज किया जाए, तब along with Christmas, all the other festivities of the other religions will also be appreciated as well. Okay. Kanchan, do you have any question? Kanchan, yes. Yes, please. Yes, so actually I have a question for the people who are supporting for the motion. Firstly, talking about as you all have mentioned, religious identity is
cannot be separated, right, from our life. So can we talk about the people who are gonna teach these things? Can a teacher be neutral and partial all the can a teacher be neutral and non-partial all the time? Do you think that everyone is gonna एक कम्युनिटी सेंटिमेंट रहता ही है अपने अंदर की मतलब अपने रिलीजन को फोस्टर करना वो एथिकली भी डिनाई नहीं कर सकता कोई भी. सो हाउ यू ऑल गोना डील विद दैट कि इट डिपेंड्स ऑन द टीचर हाउ कैन he or she be neutral in that case? That's all. Yes, Himashi, please answer. Yes, thank you for the question. एक्चुअली मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये ड्यूटीज ऑफ टीचिंग्स के अंदर पड़ जाता है या ड्यूटीज ऑफ टीचर्स के अंदर पड़ जाता है, बिकॉज व्हेन दे आर टीचिंग समथिंग दे हैव द ड्यूटी कि वो लोग न्यूट्रली वो समझाए. दे हैव द ड्यूटी कि वो लोग एक्चुअली जो सिनेरियो चल रहा है वो बताए एंड नॉट देयर ओन ओपिनियंस. इनफैक्ट जब क्लास में ऐसा होता है कभी कभी कि कोई टीचर अपना ओपिनियन बोलता रहता है तो इवन वी एज स्टूडेंट्स वी जज द टीचर्स कि हाँ ये अपनी ओपिनियन क्यों बताना स्टार्ट कर दिया इन्होंने. तो फर्स्टली दैट एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि किसी ने इसी बारे में पहले बोला था कि मुस्लिम किसको पढ़ाने के लिए बुलाएंगे, लाइक एक पंडित को या मुस्लिम मोहम्मदन उनको वैसे कुछ समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड. सो आई वांट टू आंसर दैट सिर्फ उन लोगों को क्या पता है कि कुरान में क्या लिखा है. मुस्लिम अगर इफ वी कंसिडर दैट या अगर हिंदू का कंसिडर करे पंडित को, उनको पता होगा कि वेदा में क्या लिखा है. लेकिन हमें सिर्फ उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है ना. तो वी हैव कोर्सेस in I don't know if we have it in India or not, but we have it in abroad where religious studies are included. So उन लोगों को बुलाए जो एक्चुअली इसके बारे में जानते हैं. Okay, thank you. Okay, Bishesh, your question. Bishesh. हेलो, थैंक यू मॉडरेटर. मेरा क्वेश्चन हिमाश्री से है. उन्होंने जैसे बोला कि उनके क्लास में अगर कोई टीचर्स उनके रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो वो उन्हें जज करते हैं. और हिमाशी ने उनके पहले भी बोला था कि ये रिलीजन छोटे क्लास ए से ग्रेजुएशन तक पढ़ाना चाहिए. तो मैं बोलना चाहता हूँ आप तो जज, लेकिन आप जब छोटे क्लासेस को पढ़ा रहा है कोई टीचर, वो लोग तो जज नहीं कर पाएंगे ना कि ये ठीक बोल रहा है ना गलत बोल रहा है. तो वो लोग तो मैनिपुलेट हो जाएंगे. तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप टैकल करेंगे? Yes, Himashi, please. In very brief. Yes. Okay, so मैं पहले भी मैंने ये बोला और अभी भी बोल रही हूँ कि इनके लिए इन सब्जेक्ट्स के लिए अदर कॉलेजेस में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं, उनके ऊपर ग्रेजुएशन करते हैं, रिलीजियस स्टडीज के सब्जेक्ट. तो वैसे अगर प्रोफेशनल्स आके सिखाए तो उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक न्यूट्रल होगा. और सेकेंडली हम जज करते हैं, हम जज करते हैं क्योंकि वो लोग ऐसे क्लास में बोल रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि रिलीजन के बारे में. हम उन जगहों पे जज करते हैं. एंड प्राइमरी से अगर आप सिखाए और उन प्रोफेशनल्स को लाए तो आई थिंक दिस इशू कैन बी टैकल्ड. थैंक यू. Okay. I see Shreya raising her hands again. Shreya, do you have any more question? हाँ, मैं पूछने वाली थी कि अगर वैसे टीचर बच्चे के बीच में टीचर सही से पढ़ा रहा है या नहीं, ये आप श्योरिटी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ लागू किया जा सकता है क्या? This question is for whom? हिमाश्री. Okay, Himashi. ओके, उनके लिए ऑब्वियसली रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे कि टीचर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होना पड़ेगा. एक्चुअली आप क्वेश्चन नहीं समझे. रेगुलेशंस नहीं, रेगुलेशंस कुछ भी हो सकते हैं, पर बच्चों के बीच में क्या हो रहा है उन लोग को तो पता नहीं. उन लोग को रेगुलेशंस भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. वो बस एक टीचर है और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे हैं. तो वो टीचर क्या कर रहा है उसके ऊपर मतलब एक सिक्योरिटी रखने के लिए कि हाँ वो सही से पढ़ा रहा है या मैनिपुलेट नहीं कर रहा है किसी को, इसके लिए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ओके, आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ. सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अगर टीचर्स ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन होगा. वो जाके घर पे बताएंगे, घर पे उनके एडल्ट्स है, वो लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत है ये सही है. वो लोग जाके एक्शंस ले सकते हैं अगेंस्ट दोस टीचर्स. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के हाथ में इतना नहीं होगा क्योंकि वो प्राइमरी लेवल के हैं, तो उनके हाथ में इतना भी नहीं होगा.
लेकिन Okay. वो लोग ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू। ऐसे भी और ऐसे अब्यूज के केसेस भी कंट्रोल होते हैं। थैंक यू। Okay. Okay. So, मैं from the हिमाश्री को कुछ observer, बोलना चाहता हूँ। रुको. From the Counter कर सकते हो। observer and the AC members, are you done with your questions? Please thumbs up. Okay, Rajeshri, I can see your hands raised. Please ask your question. थैंक यू मॉडरेटर। तो जैसे हिमाश्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग को टीचर्स का ऊपर है कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे वो एक साइड में रख देते हैं। लेकिन अभी आस्था ने जैसे बोला कि सब रिलीजियस को पढ़ाना चाहिए। कैसे किया जाएगा? सब रिलीजियस को पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाएगा? हाउ टू कवर दैट? क्या हम लोग का रिलीजियस एक रिलीजियस इतना ही शॉर्ट है कि एक मतलब इस ईयर में पढ़ाने से हो जाएगा? कैसे कवर होगा इतना सारा रिलीजियस? देयर आर नॉट ओनली हिंदूज एंड मुस्लिम्स, Okay. देयर आर Okay. क्रिश्चियनिटी, there are many religions, Okay. Jainism and all. Okay. Okay. Your question is for Astha. Your question is for Uh, Astha. I will go with both Himashri and Astha. Okay. Let may me I- first can I come to continue Astha. answering? Let me first come to Astha. Please Okay. respond. So, okay, look, sure. there are many other subjects in the in schools teachings also, like physics, chemistry. Physics is also a very huge subject matter. That is, there is sectorization for every teaching. Like there is physics, biology, social studies. Social studies is such huge. There are every teaching in the every teaching or every subject in the world is very huge and drastic. But it is taught how? It is sectorized. There is a syllabus. It will be there is syllabus. IAS. What is the syllabus of IAS? It's so huge. There is always a formality. So I feel that there are many religions, but with a formal procedure and schedule, everything can be taught. Like we study class 1, 2, 3, 4, 5, like that. Do we directly jump to the class 10th and give our metric exam? No, right? There is always a schedule and routine. So that's what I would like to say. Okay. Himashri, kindly answer in very brief. Okay. So my Himashri, answer please. is my answer is that अगर प्राइमरी लेवल से ही आप पहले इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, फिर जाके पहले पढ़ाएंगे कि क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि इवोल्यूशन, नेक्स्ट क्लास में जाके कि प्रैक्टिसेस क्या है, नेक्स्ट क्लास में जाके कि लॉज क्या है, वो सब पढ़ाते पढ़ाते लाइक जस्ट लाइक आस्था सेड, वी हैव सिंस प्राइमरी लेवल टू हायर लेवल्स ऑफ स्टडी। तो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होके जैसे फिजिक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, केमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वैसे ही हो जाएगा। थैंक यू। Okay. Okay. I think let's end the question session. Let's begin. Let's continue with the counter arguments. I invite Ashish. You have not made your point. Ashish. Ashish, is he there? Ashish. Okay. I don't think he is here. Biplav, please continue. हाँ, तो मैं बोलना चाहूंगा कि सब बहुत कंसर्न है कि ये पढ़ाया कैसे जाएगा। वैसे ही जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, हमारे पास अलग अलग कोर्सेस है टीचिंग के लिए, बीएड प्राइमरी के लिए। वैसे ही एक धर्म, अगर आप एक धर्म का मतलब उस पर डिग्री कर रहे हो, तो उस पर आप उसके अंदर ही हम लोग 3 साल का कोर्स है हमारा, तो समझिए उसका भी 3 साल का। तो 3 साल के कोर्स में आप अलग अलग सेमेस्टर्स होंगे, हर सेमेस्टर में आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स होगा, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और वैसे नहीं होगा कोई यहाँ पे किसी ने कहा था कि हम लोग को पढ़ाने कौन आएगा, मौलाना पंडित ये तो आएंगे, नहीं वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग तो स्पेसिफिक धर्म से, तो वो लोग आएंगे तो वो लोग बायस ही हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बायस ही रहेंगे वो। तो यहाँ पे जो टीचर आएंगे वो आके क्या होता है अनबायस्डली पढ़ाएंगे, और उन पे जैसे हमारी टीम से एक ने कहा कि वो बच्चे जाके कुछ गलत है तो बच्चे जाके एक्सप्रेस करेंगे घर में, तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करके वो लाएंगे इंस्टीट्यूशन तक, तब उन पे एक्शन लिया जाएगा। वैसे ठीक। अंकित, प्लीज मेक योर पॉइंट। अंकित। नो, मेरा yes, हाँ, मेरा कहना है कि अगर मतलब जैसे कोई प्रीस्ट या मंक या कोई मौलाना अगर ये लोग नहीं पढ़ा रहा है, तो मतलब तुम्हारा खाली ऐसे बोलने से थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए नहीं है ना। अगर आपको रिलीजन अगर लाना ही है तो मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना।
अगर आप सिचुएशंस मीन्स ऐसा है कि थ्योरेटिकली तो देख लिया कि हाँ इसमें ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, बट अगर आप सिचुएशन फेस नहीं किया, यू वॉन्ट रिएक्ट द वे यू रीड। आपको सिचुएशंस फेस करना होगा। अगर मंक कोई आके पढ़ा रहा है तो वो अपना पूरा नॉलेज बताएगा, इट्स नॉट कि मतलब वो कर रहा है ना, लेकिन आप अगर वो भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो आप बोल रहे हैं कि अब हेट फैलेगा, तो अब अगर कोई देखेगा दूसरा रिलीजन का ही बच्चा उसको देखेगा तो वो सोचेगा ना कि अरे ये तो मेरे रिलीजन का नहीं है, मैं इसका बात क्यों सुनूं। और अगर खाली ऐसे प्रोफेशनल डिग्री लेके खाली एक कोई आ जा रहा है जो थ्योरी पढ़ के आया है, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जो कभी कुछ ट्राई नहीं किया, जो एक्सपीरियंस नहीं किया, जो प्रेक्टिसेस जो मतलब लिखा हुआ है, तो वो तो काम का नहीं है ना। आप खाली सिलेबस ही बढ़ा रहे हैं सबका बच्चा का। और स्कूल एक न्यूट्रल जगह है ना, जहाँ पे मीन्स आप अपना रिलीजन आइडेंटिटी बाहर छोड़ के आता है, इसलिए सबको इक्वली ट्रीट होता है। आपको वहां पे जाके रिलीजन बीच में लाने के लिए नहीं, आप घर में मतलब मोरल वैल्यू सीखना है, आप घर में सीख सकता है। आप मतलब मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग इज फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि मोरल वैल्यूज अपने पेरेंट्स का देखा है सब किसी ने, तो वहीं से आ रहा है, तो क्यों एक सिलेबस बढ़ाना। ठीक है, शुभम प्लीज add to your teammates. Shubham, Yes, I agree that we study the values of religion from our parents. Although it is our personal religions, and we do not get to know about the other religion. But we live in a society, so we get exposed to the other religion anyway, and never the fact that internet is accessible for everyone. So why should we make it as a compulsory burden to a student when they can access the religion? Maybe it is some kind of project for finding harmony of different religion, inter-religion. So the school may help that, but why should a long, vast course should be included? That is the point. That is a major point. okay. Himashi, please. Okay, I'd like to answer Shubham first. I'd like to say that अगर ऐसा ही होता कि हम बर्डन दे रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर रिलीजन को लेके, तो फिर व्हाई शुड वी बर्डन देम विद फिजिक्स अगर जाके रिलीजन के ऊपर डिबेट ही करना है। व्हाई शुड वी बर्डन देम विद एनीथिंग अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो है ही नहीं। व्हाई शुड वी, बट वो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता ना किसको किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उन लोगों को सिखाना पड़ेगा बचपन से कि दिस आर योर ऑप्शंस, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ और व्हाट डू यू वांट टू स्टडी अहेड। उनको बताना पड़ेगा, तभी उनको मिलेगा। और थर्ड एक सेकंड पॉइंट है मेरा, जो किसी ने पॉइंट किया था अभी कि रिलीजन सिर्फ अगर ये लोग नहीं पढ़ाएंगे, मॉन्क्स या अदर मौलवीज एंड पंडित्स, एंड दे इफ दे डोंट टीच द रिलीजन, then why are we not, like how is it valuable, like how is it practical? ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्यों नहीं मिला था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रिलीजन के टीचिंग्स के बारे में सीख के रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में, उसके प्रैक्टिसेस, उसके टीचिंग्स, क्यों ये कर रहे हैं हम, ये सब सीख के हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, हम खुद क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, ये हमें करना है कि नहीं है। तो पर उसके लिए एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ना, और एजुकेशन के लिए हमें न्यूट्रल लोग चाहिए जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे। थैंक यू। ठीक है, ओके। ज्योतिर्मय प्लीज, ज्योतिर्मय। और न्यूट्रल और न्यूट्रल के बारे में बोला है ना, वही तो बहुत बड़ी बात है ना, वही पॉसिबल नहीं है न्यूट्रल चीज। वो चीज हो ही नहीं सकता न्यूट्रल। क्यों नहीं हो सकता है? एक नंबर, जो हमारा रिलीजियस बुक्स में क्या होता है, सब एक चीज में डायरेक्टली इस बात में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं बोलता हूँ, बुरा कोई बुरा नहीं मानने का, मैं बोलता हूँ कि वो गॉड और अल्लाह के बारे में जो लोग बोलते हैं कि वो हमारा गॉड का वो स्ट्रक्चर है, अल्लाह का कोई मतलब स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, इसमें तो डिफरेंस है ना, तो कंपैरिजन आ गया इसमें। कौन सा वो महान है, कौन सा वो
इस पे कुछ जब तक कंपैरिजन होगा ना चीजों में ना, तब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा। वही बहुत बड़ा बात है। वो कंपैरिजन चीज जब तक है तब तक न्यूट्रल है। हम वो सब क्यों ही दिखाए बच्चों को कंपैरिजन वाला चीज, वो हम लोग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इस चीज को ना, ये सब मतलब कि रिलीजियस चीज को थोड़ा साइड में रखकर उन सब से फोकस हटाना हम लोग का मतलब एम होना चाहिए। जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए, वो सब के फोकस थोड़ा हटाना चाहिए बच्चों लोग, मतलब कि सब सबको। ठीक है। आशीष, यस आशीष सॉरी आपको कुछ ऐड मॉडरेटर, करना है? तब थोड़ा, हाँ तब आपने बुलाया था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं बोल पाया। सो मुझे यही कहना है कि देखो जो मैं ओवरऑल थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि बहुत वो बात होगी। जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो सही समझ का वो नहीं होता, भेदभाव नहीं कर सकते वो लोग। वो जैसा बोला गया, जाएंगे अपने पेरेंट्स के पास, जाएंगे बात करेंगे एंड ऑल दैट, तो वो सब बोला गया था। सो उसमें मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो पेरेंट्स से ही पूछने वाले हैं, उनको वही से अगर सीखने को मिल रहा है, तो उसको स्कूल में लाने की क्या जरूरत है। सब लोग आराम से रहे अपने स्कूल में, ये रिलीजियस वाले टॉपिक हो ही ना, पहली बात। सेकेंडली बोले ना जे कौन आएगा पढ़ाने, ये पढ़ाने वाली जो बात थी, देखो ये भी बोला गया है कि सब लोग अपने मस्जिद जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, गुरुद्वारे जो जिसका रिलीजन जो टेम्पल में जाते हैं, वो लोग को वहाँ पे अपना रिलीजियस टीचिंग मिल ही जाता है। सो इसको एक्स्ट्रा करके देखने की क्यों जरूरत है। सब लोग, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता व कोई गुरुद्वारे नहीं जा सकता, सब जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। मैं भी जाके आया हूँ, मॉस्क में गया हूँ, गुरुद्वारे गया हूँ, सब जगह गया हूँ मैं भी। ऐसा तो कुछ है नहीं, वहाँ पे सब जगह पे टीचिंग तो मिल ही रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कोई नहीं जान रहा, जिसको जानना है ना वो जानेगा ही। ठीक है, बाय दिस और दैट। मैं बचपन से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहा हूँ जहाँ पे सारे रिलीजियस एक साथ थे। ठीक है, मेरे घर के साइड में मुस्लिम लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग भी थे। मैंने क्रिसमस भी मनाया है, ईद भी मनाया है उनके साथ बैठ के। सो इट्स नॉट लाइक दैट स्कूल में ही सब वो नॉलेज डालना होगा। सो दैट इज माय पॉइंट, इट्स नथिंग बिग। Okay, Thank please, you. Astha, please counter. Okay, so first I would like In his one Astha? of his initial arguments, I would like to ask him, tell that उन्होंने कहा था कि घर में मतलब घर में ही हम सीख सकते हैं, या also he added like पंडित वगैरह seek, but let me tell that learning the teachings of a religion from a particular religious person, like a pandit, a priest, he will only teach us about Hindu. Or if a person from the Muslim community, he will only teach us about the Muslim community. But then when we are collectively learning in a school, learning about religions, also I would like to add that hate कैसे आता है, कहाँ से आता है? जब हम एक ही रिलीजन के बारे में सीख रहे हैं या लोग जब बायस हो रहे हैं, तब slowly and steadily hate for other religions somehow grow. That is inevitable. Hate comes. I would like to say that हम एक रिलीजन जब सीख रहे हैं, सिर्फ उसी रिलीजन के बारे में हम सीख रहे हैं, अदर रिलीजन को करते हैं। या ऐसा होता है कि हम we stay unaware of other religions. So in a school where in a formality, in a schedule, it is taught, people learn the value. And also I would like to Jyotirmoy for one thing, he was telling something about comparison. हम क्या बायोलॉजी और फिजिक्स क्या कॉमन लाते हैं क्या टीचिंग द टीचिंग्स, यहाँ पे अगर रिलीजन के बारे में सिखा रहे हैं तो एक रिलीजन को अदर रिलीजन से कंपेयर करके नहीं सिखाया जाएगा. It will be equivalent. The knowledge will be spread equivalent. Sentiment. Please, don't. Please. Astha, Yeah. please continue. And I continue, Vivekda? Yes, please. Please conclude. Yeah. So
that yes, concluding, yeah, so I was telling that ज्योतिर्मय दा ने कहा था कंपैरिजन के बारे में, तो कंपैरिजन यहाँ पे नहीं आता। हम द डिफरेंट सब्जेक्ट, द नॉर्मल सब्जेक्ट दैट वी आर लर्निंग इन स्कूल, वहाँ के बीच में कंपैरिजन नहीं। फिजिक्स, सोशियोलॉजी में, सॉरी सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में कंपैरिजन नहीं आता। तो ऐसे ही है, रिलीजन एक सब्जेक्ट अगर हो, तब वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके मतलब between these also there will be no comparison. And also Ashish da said that हम घर में भी सीख सकते हैं रिलीजन। मैं एक कहना चाहूंगी कि जब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उससे पहले ABCD घर में भी पेरेंट्स सिखाते हैं। Like initially they teach us, after that they give admission. So स्कूल में, घर में भी बेसिक्स सिखा सकते हैं, ABCD and stuff, पर फिर भी फॉर्मली टीचिंग्स के लिए वो लोग प्रिपरेटरी नर्सरी सिखाते। प्रिपरेटरी नर्सरी के the whatever that's those subjects can be taught at home also by parents, but school में क्यों स्केड्यूल एक रूटीन के लिए। तो वैसे ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में भी रिलीजन सीखा जा सकता है, फिर भी एक स्कूल में जब फॉर्मली वो लोग सीखे, इट ऑलवेज becomes better. Thank you. Okay. So we are in the last round, which is the final round. So let me begin with Biplab for his concluding remarks, and if he has any counters. Yes, I can see there are some questions. I will come to that. Biplab, with your concluding statement. हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि पढ़ाएगा कौन, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं, वो कैसे पढ़ा सकता है। अब एक फिजिक्स की टीचर ने वो सब जो थ्योरम उसने जाके प्रैक्टिस नहीं किया कहीं, वो पहले से थ्योरम बन के आया था, एक थ्योरी बना है, वो पढ़ा रहा है, उसने भी वही थ्योरी पढ़ा है और वही वो बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो प्रैक्टिस करके आएगा वही पढ़ा सकता है। पढ़ाने का तरीका है तो जो प्रोफेशनल है वो पढ़ा सकता है, प्रैक्टिस करना ऐसा जरूरी नहीं है। और प्रैक्टिस करने जाएंगे तो भाई हर एक रिचुअल प्रैक्टिस कराना, मतलब जो आप खुद ही बोल रहे थे बर्डन हो जाएगा, ये आप बर्डन और बढ़ा रहे हो, ये सब बोल। और फिर कंक्लूजन ये है कि ये जो कौन पढ़ाया कौन नहीं, ये हम डिस्कस नहीं कर सकते। प्रोफेशनल्स बैठेंगे, कमेटी बनेगा, वो अच्छे से फ्रेम करके वो बेटर बता पाएंगे। हम यहाँ डिस्कस करके सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि कौन बनाया कौन नहीं, कौन पढ़ाया कौन नहीं। हम यही अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं बस। और यही रिलीजियस स्टडी एक सोसाइटी को एक अच्छे ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, और बच्चों को और अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, आई गेस। ठीक है, अंकित, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अंकित, आई वांट टू टेल कि मतलब अगर जो आदमी मतलब खाली थ्योरेटिकली नॉलेज लेके जो बोल रहा है कि अगर मतलब सब कुछ फिजिक्स का थ्योरी बन के ही आया था, तो उसको मतलब एक टीचर पढ़ा दे रहा है, तो स्टूडेंट भी तो वो खाली पढ़ के एग्जाम दे रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ एवोल्यूशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो अगर आप किसी को मतलब खाली पढ़ा देगा कि हाँ ऐसा 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 हुआ था, लेकिन वो क्यों हुआ था तुमको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो तुम वो नहीं करेगा। और रिलीजन ऐड करना है सिलेबस में, तो क्या मतलब साइंस, सोशल स्टडीज ये सब हटाएगा क्या? अगर मतलब रिलीजन ही तुम लोग बोल रहे हैं कि मोरल वैल्यूज तो अब मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पढ़ा है स्कूल में रिलीजन, बट आज भी हम लोग का मतलब ऐसा तो दोस्त नहीं है ना कि खाली हिंदू ही दोस्त है या फिर खाली मुस्लिम दोस्त है। अब सब कोई आपका फ्रेंड सर्कल में किसका सबका दोस्त सब कोई रिलीजन में होगा, और सब कोई का कल्चर आप खुद मतलब मानते हो कि मतलब हाँ ये दोस्त है तो रेस्पेक्ट किया जाता है, उसका वो कल्चर है, हाँ उसमें आप कुछ नहीं बोलोगे, आप अपना कल्चर फॉलो करता है, वो अपना कल्चर फॉलो करेगा। बट कि अगर प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस है, अगर कोई आदमी मतलब जिसका पास रिलीजियस बिलीफ मतलब वो है कि खाली आके पढ़ा के खाली, अगर कोई खाली इसके लिए पढ़ाए कि खाली उसको पैसा चाहिए कि वो अपना पढ़ाएगा, कैसे भी थ्योरी पढ़ा के चला जाएगा। अगर मतलब मार्क्स आ रहा है जिसका पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हाँ, तो वही कि मतलब एजुकेशन मतलब आप साइंस आपको मार्क्स में मतलब साइंस फ्यूचर है या फिर रिलीजन, ये डिसाइड करना है। और मोरल प्रिंसिपल्स जो भी है वो आप अपना घर में बना सकता है। एंड मतलब जो भी है आज के टाइम में हम लोग जितना भी आदमी देख रहा है, सब अपना मोरल प्रिंसिपल घर से ही सीखा है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, और वो सही कर रहा है लाइफ में। Okay. Himashi, your concluding remarks. Can I counter as well? Yes. In very brief, you have 1 minute.
Okay, so there was this thing about supremacy of religion कि सब रिलीजन बोलते हैं कि हम सुप्रीम है. हाँ, कंपैरिजंस तो होंगे, ऑब्वियसली कंपैरिजंस होंगे, लेकिन उन कंपैरिजंस में स्टूडेंट्स को जब वो सब कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा तब उनको खुद का थिंकिंग प्रोसेस इवॉल्व होगा कि वो लोग खुद सोच पाएंगे कि उनको कौन से रिलीजन को फॉलो करना है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर एक रिलीजन में हो तो आपको हमेशा उसमें ही रहना है. यू कैन कन्वर्ट, वी हैव सीन दैट इन लॉ. तो अगर आपको कन्वर्ट भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं वहाँ पे. तो ठीक है, इट्स नॉट ठीक लाइक है, कि आपको एक ही रिलीजन में रहना पड़ेगा. और सेकेंडली ये बोला गया है कि कंक्लूड प्रैक्टिकल कीजिए, एग्जाम्पल के बारे में. आई एम सॉरी. कंक्लूड कीजिए. हाँ, ये ये शॉर्ट लास्ट टाइम. पॉइंट. यस, ओके, प्लीज प्लीज. तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में बोला गया है. तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस के एग्जाम्पल्स आपको वैसे भी दिए जा सकते हैं. जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग भी बोल सकते हैं कि ये राइट हुआ है हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में या कुछ भी. तो वो लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में खुद डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. आपके पास नॉलेज है अगर कि ये रिलीजन ये बोलता है तो आपके पास ये भी नॉलेज होगा कि हाँ ये बोलता है तो फिर हम लोग कैसे फॉरवर्ड जाए. थैंक यू. ठीक ठीक है. शुभम, योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. Okay, Please keep it brief. so I would like to add a little bit the idea of conversion that last speaker had said, that itself can cause a trouble in society. If a student wants to convert after coming home from hearing about particular religion. Okay, so and other than that, really, if you start to include religion into the curriculum, first of all, the course will become large. Second, a lot of speakers have started to say that it is a debate group. So a lot of speakers say that the course curriculum will be dependent on some jurisdiction that will think about it, of course. But we should discuss it here because it's a debate group. And I'd also like to add that the idea of adding religion will also hamper the critical thinking of and scientific thinking of society, because in modern age, people are turning away from religion, or at least in the religious orthodoxy. They are religious, but they are not like deeply religious, as in like 200, 500 years ago. So we are more dependent on sciences. So we should focus on physics more than the religious studies. That's all I want to say. Okay. Astha, your concluding statement. Please keep it very brief. Astha. Okay, so concluding, I would like to just conclude with the statement that religious teachings in school will only be beneficial for the students because it will only spread tolerance and affection for other religions as well, and will also reduce hatred, because it is very common amongst the people for hating other religions. Hate is very much vibrant in the society for other religions. Teachings, because students are dependent on school for teachings. Whatever the school teaches, they are blindly believing that. So I believe that if good things are taught about religions, if good things are taught, then definitely hatred will reduce, conflicts will reduce, and definitely the religious problems that are created in the society will definitely get abolished someday. Thank you. Okay, thank you. ज्योतिर्मय, प्लीज अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दीजिए. मैं और बोलना चाहता हूँ कि किसी ने इसको बोला वेरी था, शॉर्ट में कहिए, शॉर्ट में खत्म कीजिए. ठीक है. और किसी ने बोला था कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री को वो रिलीजियस थिंग्स के साथ कंपेयर कर रहा है. ये क्यों कंपैरिजन नहीं है वो बताना चाहता हूँ मैं. सो इमोशन और लॉजिक दोनों कभी मिलते नहीं है. जहाँ पर लॉजिक है वहां पर इमोशंस नहीं है, जहाँ पर इमोशंस है वहां पर लॉजिक नहीं है. तो हमारे लोग रिलीजन को एज इमोशन लेते हैं, उसमें लॉजिक नहीं है. हम लोग ढूंढने जाएंगे तो भगवान के 4 हाथ है, वो उसमें कुछ है क्या लॉजिक? वो इमोशनली उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं.
एक्सेप्ट करते हैं कि वो उसने कंपैरिजन किया फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा तो वो तो प्रूफन है ना। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। साइंस में ऑलवेज वो प्रूफ करके ही पढ़ा जाता है। वो उस चीज का कंपैरिजन नहीं होता है, वो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। वही बोलना चाहता। और हम लोग जो पॉलिटिकल इश्यूज को हम लोग क्लासरूम में ला रहे हैं, जब ये सब हम लोग जब पढ़ाएंगे क्लास में, वो एक बहुत बड़ा इशू बनेगा देश में। ये हो सकता है कभी, ठीक हो, वो जो ये एक कंट्री होगा जो इसमें सब रिलीजन एक ही है, एक क्लास में सब सेम रिलीजियस है, तब पढ़ाया जा सकता है, मगर डिफरेंट रिलीजन के साथ नहीं हो सकता है ये। ठीक है। आशीष, अपना कंक्लूजन दीजिए। आशीष, तो keep it very short. यस मॉडरेटर। तो ओके, सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा था अपने स्टेटमेंट्स में, उसमें मैंने कॉन्ट्रडिक्ट भी कर दिया था कि कैसे सीखा जा सकता है एंड ऑल दैट। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे ही सीखा है जितना भी सीखा है, और अभी भी सीख रहा हूँ, हम लोग सब सीख रहे हैं। तो आई शुड नॉट से दिस, बट मैं खुद चाहता हूँ कि ये स्कूल में इम्प्लीमेंटेड हो, बट अगर होता तो भी कुछ अलग वैल्यू निकल सकता था और नहीं भी निकल सकता था, एज इफ देयर इज बोथ पॉइंट्स। सो दैट्स इट। एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट, जो मैंने कहा था ना बच्चों के बारे में एंड ऑल दैट, सो ऐसा जब सिखाया जाएगा ना तो सब तो सीखेंगे ऑब्वियसली। ये इसके बारे में सीख रहा है, वो उसके बारे में सीख रहा है, उसके रिलीजन के बारे में। किसी के मन में ये भी आएगा कि अरे मेरे में तो ये होता है, तुम्हारे में ये नहीं होता। सो ऐसे थोड़े थोड़े आएंगे। ओके, दैट्स फॉर श्योर। I have seen this. That's why. So that's it. Thank you. Kaushik, please, your question. Okay, thank you, moderator. So मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब तुम लोगों ने बोला कि कोई एक किसके लिए? अलग प्लीज टीचर प्लीज इन्फॉर्म द टीम। कोई भी आंसर दे सकता है, मेरा कंसर्न अलग है थोड़ा सा। मतलब देखो, everyone कोई else, भी please switch off your raise hand option, and I will give everyone the opportunity. Yes, please question. कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एक वो भी कंसर्न है कि ये कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाएगा। क्योंकि देखो, सब लोग का रिलीजियस टेक्स्ट अलग अलग लैंग्वेज में है। बहुत का पाली में है, हम लोग का जैसे संस्कृत में है। मैं हिंदू बिलीव करता हूँ तो संस्कृत में है वो। और हम लोग का ये देखने में आता है कि इंटरप्रिटेशन बहुत अलग हो जाता है। मतलब हम लोग का ये देख लो, हम लोग 33 कोटि बोलते हैं, तो कोई बोलते हैं हम लोग 33 करोड़ है, तो हम लोग 33 करोड़ तो नहीं है। और ऐसे हम लोग का इंटरप्रिटेशन अलग होगा। तो हम लोग कौन से लैंग्वेज में कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या बोलते हो तुम लोग? और एक पॉइंट था कि मतलब एक ऐसा भी डायमेंशन में जाना चाहिए था कि तुम लोगों को, मतलब ये रिलीजियस टेक्स्ट वो सब हम लोगों का मेडिटेशन भी सिखाते हैं, पीस ऑफ माइंड भी दिलाते हैं, तो वो सब भी थोड़ा जाना चाहिए था। वही है। ठीक है। Bhargav, your question. We'll just compile all the question. Bhargav, Okay. please keep your question very short. We are very short on Can I? time. ओके, श्योर। जैसे कि हम लोग का टॉपिक आज इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, तो जैसे हम लोग का अभी देखिए, अगर यूएसए में अगर रिलीजियस टीचिंग हुआ तो यूएसए में तो हिंदू स्टूडेंट्स है ना, और हिंदू स्टूडेंट्स अगर यूएसए में है तो उन लोगों को तो कभी भी हिंदू का वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यूएसए तो रिलीजन मोस्टली वो लोग मुस्लिम है, मतलब इस्लामिक जो स्टडीज होगा या फिर क्रिश्चियन स्टडीज होगा वो सभी पढ़ाएगा, तो वो लोग को तो कभी मिलेगा ही नहीं। सो इसके हिसाब से तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना सोसाइटी में। सो वही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। Kanchan, you had some question. Kanchan, Yes, please, your question. I have Very a brief. question. Okay, sure. So I have the question for the members who are against the motion. So as mentioned in Article 28 that we have freedom to preach and propagate our religion. So don't you think that this non-inclusion of religion teachings in educational fair would violate this article and this right? Okay. First of all, okay, Kaushik and Astha, please switch off your raise hand option. I invite anyone from the against team to answer first Kanchan's question. Anyone, please raise your hands from the against team. रिपीट করবো পারবো নাকি? अच्छा, Repeat করলে ভালো হয়। Okay, Kanchan sure. कह रही है कि अच्छा, okay, Kanchan, please. Okay, so as mentioned in Article 28 that Speak in Hindi, we have. so Okay, people can okay. understand.
तो आर्टिकल 28 में ये है कि वी हैव द राइट ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, राइट टू प्रीच, राइट टू प्रोपगेट। सो तुमको नहीं लगता कि दिस नॉन इंक्लूजन ऑफ नॉन इंक्लूजन ऑफ दिस Religious education. Okay. रिलीजन इन एजुकेशनल फेयर एक कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये आर्टिकल को एंड वायलेट करेगा दैट वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? Okay, Jyotirmoy, please. मैं बोलना चाहता हूँ कि From the against, please. इसमें एक इशू है। तो आपने बोला वो जिसको अच्छा लगे वो जाएगा ना पढ़ने, उसको फोर्सफुली नहीं करना है ना उसको। Yes. तो क्लास Okay. में बैठेगा सब लोग, जो अलग अलग रिलीजन्स के बच्चे सबको कि सब रिलीजियस पढ़ाएगा तो वो फोर्सफुली होगा ना, किसी को पसंद नहीं भी हो सकता है ना। Okay. Okay. यहाँ पर Ankit, बोला please जिसको respond. Okay. Okay. Ankit, please add to your teammates. मेरा भी कहना यही है कि मतलब अभी नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उसको वायलेट हो रहा है अभी भी। मतलब हाँ, अगर आपको अच्छा लगा कोई रिलीजन आप ज्वाइन कर सकता है, मतलब आप हाँ अपना रिनाउंस करके ज्वाइन कर लीजिए, उससे मतलब वो नहीं है ना, वो आपका सोशल लाइफ से भी आ सकता है। आपको अगर कोई रिलीजन पसंद आया तो आपका मतलब होता है सब कोई का, आपका सोशल लाइफ है उसमें आपका दोस्त मेजोरिटी क्या है, जो रिलीजन आपको अच्छा लगा तो आप ज्वाइन कर सकता है, तो वायलेट नहीं कर रहा है ना। ठीक है। तो I will come to Kaushik's question. Anyone wants to answer Kaushik? Please raise your hand. Yes, Himashri, I can see your raised hand. Please. यस, थैंक यू। Very short. सो लैंग्वेज Okay. के बारे में किस लैंग्वेज में पढ़ेंगे ये बोला गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का मदर टंग हमें ऐसे में सिखाया गया है, या किसी लोगों के लिए हिंदी, किसी के लिए मराठी, किसी के लिए ऑल ओवर इंडिया इट्स डिफरेंट, या ऑल ओवर वर्ल्ड इट्स डिफरेंट, बट हम लोग फिर भी एक मीडियम हमेशा ढूंढ लेते हैं। जैसे इंग्लिश, इंडिया में हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अगर जाए तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, अगर एसएमएस मीडियम में जाएंगे तो एसएमएस मीडियम में पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में। थैंक यू। ठीक है। Bhargav's question. Anyone wants to answer Bhargav's question? Please raise your hand. Himashi, I can see your hand raised. Please answer. Bhargav. So this one also I would like to answer कि हिंदुइज्म अगर यूएस में जैसे ज्यादा लोग नहीं है तो वहाँ पे क्यों पढ़ाएंगे। तो मैं ये लैंग्वेजेस के हिसाब से बोलना चाहूंगी कि अगर हम इंडिया में है तो अभी कुछ लोग हम बोलेंगे कि हाँ स्पेनिश पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वो जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अगर हम जाए उन कंट्रीज में नहीं तब हम उसका क्वेश्चन नहीं आप क्वेश्चन थोड़ा समझे नहीं। भार्गव कह रहा है कि अगर कोई कंट्री का स्टेट रिलीजन है पहले से ही, तो उसमें जो माइनॉरिटीज के जो रिलीजन के लोग हैं तो उनके लिए वो कैसा होगा फिर? उनके लिए तो फिर इक्वल राइट्स नहीं मिलेगा टीचिंग के लिए। काइंडली आंसर इन वेरी ब्रीफ। अगर स्टेट रिलीजन है और माइनॉरिटीज के लिए ओके, सो वहाँ पे प्लीज उन्होंने हाँ, तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी स्टेट में मेन रिलीजन अगर कुछ और है और फिर भी दूसरे रिलीजन्स को सिखा सकते हैं इन ब्रीफ, अगर वो लोग ब्रीफ में दे देंगे कि ये रिलीजन ये मीन करता है तो उसमें कुछ हानि तो नहीं होगी ना, तो मैं वही बोलूँगी। ठीक है। We have finally come to the end. Now I would invite very briefly Krishna Sharma. Is he here? Krishna Sharma? Yes, I am here. Okay, please very briefly give your opinion on today's debate. Very brief, keep it very brief. Okay, so today's debate was very good. I was impressed by all the parties, and there was a question that no one answered. That was whether then it was for the party for motion, rather than leaving the children on their own to study or know about other religions. Is it better to teach it in one place? That was it. ठीक है, Malavika De, is she here? Malavika De. Okay, I can't see her name. Bishal, is he there? Bishal? Bishal? Okay, I invite the EC members to kindly conclude. Bhargav? थैंक यू मॉडरेटर। सो जैसे कि हम लोग मतलब बहुत लोग अगेंस्ट से बोल रहे थे कि
कैसे टीचिंग अगर बर्डन हो जाएगा, मगर जैसे स्पोर्ट्स या फिर क्रिएटिव एक्टिविटी हम लोग को जैसे म्यूजिक, डांस वो सब भी सिखाया जा सकता है, तो रिलीजन भी एक फन वे में सिखाया जा सकता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंडली जैसे अगर हम लोग अगर कभी-कभी क्या होता है कि गलतफ़हमी फैलाया जाता है फैमिली में ही कि अगेंस्ट के पार्टी जो बोल रहे हैं कि फैमिली में सीख सकते हैं, मगर गलतफ़हमी फैमिली से सीखते हैं। तो अगर कुछ गलत भी अगर सीख लिया फैमिली में, तो वो जाके स्कूल में करेक्ट हो सकता है। वही मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट है। ठीक है। विशेष, आर यू हियर विशेष? Thank you, moderator. Okay. I would like to keep it brief, but sorry. तो मेरा मतलब एक न्यूट्रल ओपिनियन था इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डिबेट मेरा एक ओपिनियन बन गया है कि रिलीजन को नहीं पढ़ाना चाहिए हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि साइंस में अगर हम पढ़ेंगे कि जैसे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और वही नेक्स्ट क्लास में जाके हम लोग पढ़ रहे हैं कि गॉड ने बनाया एडम ईव को, ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने बनाया। पहला दिन में कुछ नहीं था, दूसरा दिन में स्काई आ गया, तीसरा दिन में लैंड आ गया, और फिर संडे में गॉड ने रेस्ट कर लिया। तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सभी लोगों में। और एक बार बोला था कि लैंग्वेज के ऊपर नहीं बोला था उन्होंने बोला ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंदू टेक्स्ट है उसका ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट है संस्कृत में, और जो ओरिजिनल मुस्लिम टेक्स्ट है वो अरबिक में है, तो उसे ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसका मीनिंग भी पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, थैंक यू। राजश्री, प्लीज मेक योर लास्ट ऑब्जर्वेशन। थैंक यू मॉडरेटर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का डिबेट सेशन बहुत अच्छा था, और हाँ, मैं ये सपोर्ट नहीं करती कि रिलीजियस स्कूल में पढ़ाया चाहिए, बिकॉज रिलीजियस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हम लोग के कंट्री में बहुत ग्रजेस हो रहा है, बहुत पॉलिटिकल इश्यूज हो रहा है। पर हाँ, आई विल मोर फोकस इन ज्योतिर्मय पॉइंट, दैट इज या वी शुड टीच अबाउट ह्यूमैनिटी, तभी तो शांति होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। कंचन, आर यू हियर? Yes, Please, moderator. please. Yes. Okay, so I really enjoyed today's debate. You all, तुम सब ने बहुत ही अच्छा arguments रखा, and I am really impressed. And I am neutral on this topic, and that's all. Thank you. Okay. Kaushik and Himashi, please open both of your mic. Yes. Yes, Kaushik, please question. So my question was that कि इंटरप्रिटेशन अलग होगा ना, मतलब हम लोग मीडियम तो ठीक है, इंग्लिश कर लेते वो कर लेते, लेकिन वो हम लोग का जो संस्कृत में कोटि है, ब्रह्मा है, वो सब का मीनिंग अलग अलग है, और वो पूरा श्लोक के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो सब कैसे पढ़ाएंगे इंग्लिश में? वही क्वेश्चन Basically, he is talking about the interpretation. ओके ओके। बेसिकली ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो विशेष भैया ने भी बोला वो राइट। ओके, सो मैं ये बोलूँगी कि इन चीज़ों के लिए हम स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक्स तब बनाया जाएगा, तो उनमें उनके लिए इंटरप्रिटेशंस किया जाएगा, वो उन प्रोफेशनल्स का काम है। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इन ऑनेस्टली हम इन लॉ कॉलेजेस वी आर स्टडिंग हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, so there we are getting the interpretations of those texts of the Hindu scriptures and Muslim Qurans etc. तो हम उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका इंटरप्रिटेशन टफ होगा, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। ठीक है। Sorry for understanding it wrong. Okay, Kaushik, is your question being answered? Yeah. It is good. Okay. We have moved ahead from our time limit, but it was an amazing session. We have very good arguments from both the for and against him. And I would also invite some of the members who are neither observer, they joined late. Elvar, Lashmita, Mriganko, Ankit, then we have Krishang. Okay, we have these members. I would invite them in the next debate. So thank you everyone. Have a good night and bye bye. Bye. Good night. Thank you, moderator. Bye bye. Good night, guys. Good night. guys.